اللہ رب العزت نے جن بندوں سے کچھ کام لینا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے ایسا ماحول اور ایسی راہیں کھول دیتا ہے، ایسے لوگوں سے انہیں ملا دیتا ہے۔ کس پر ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بس وہ اس کا فضل ہے جب جس پہ ہو جائے، جس پہ کرم ہو جائے۔ بچپن کے اندر روح موجود ہے، وہ کس چیز سے ملی ہے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ پانی سے بنی ہوئی ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، مٹی سے بنی ہوئی ہے، کون سے مالیکیول سے بنی ہوئی ہے، کون سے بیکٹیریا سے بنی ہوئی ہے، کون سے سیل سے بنی ہوئی ہے، اس کا بیسک ایلیمنٹ کیا ہے، نہیں بتا سکتے آپ۔ وہ ایک نور ہے، اور وہ نور کیسے ہے علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ، اس لیے کہتے ہیں انسان جو ہے وہ اللہ کا ایک راز ہے۔ یہ راز آشکار ہو جاتا ہے، آسان نہیں، ہو جاتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں وہ نور بنتے ہیں، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں وہ نور بنتا ہے، آپ کچھ اچھی سوچ سوچتے ہیں وہ نور بنتا ہے، اور یہ نور آپ کی روح کو اتنا نورانی کر دیتا ہے، اتنا نورانی کر دیتا ہے کہ اس نور کی فریکوینسی سے ہم آہنگ ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ جو کہا گیا تمہاری نمازیں اٹھا کے تمہارے منہ پہ مار دی جائیں تو کہا عبادت رد بھی ہو جاتی ہے۔ ایک ڈائریکشن تھی جہاں اتنی دنیا داری ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں خود غرضی کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، آپ کیسے اصل کی طرف آئی نہیں۔ میں تو آپ کو جیسے بچپن سے ہی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، تو یہ کیسے سفر شروع ہوا اور کیسے آپ نے اس کو سوچا اور کیسے زندگی انہی راہوں پہ چل رہی ہے؟ الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھک اور سنگت نصیب ہوئی ہے، اور بہت محترم اور معزز اور علمی شخصیات بھی ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر نعیم انور نعمانی صاحب، اور بہت ہی عزت کے لائق محترم فخر اللہ طاہر صاحب، عمر دراز صاحب، ڈاکٹر شاہدہ نعمانی یہاں موجود ہیں۔ زندگی کی حقیقتوں سے نبرد آزما ہونے والی سمیہ مصطفیٰ صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ سب بھی کسی سے بھی یہ سوال پوچھیں گے تو یہ کہے گا کہ جی بچپن سے یہ رجحان تھا یا بچپن سے یہ شوق تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جن بندوں سے کچھ کام لینا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے ایسا ماحول اور ایسی راہیں کھول دیتا ہے، ایسے لوگوں سے انہیں ملا دیتا ہے۔ ظاہراً وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، لیکن وہ اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہوتا ہے، اور وہ منصوبہ یقیناً تدبیر اللہ کی ہے، اور بہترین تدبیر اللہ کی ہے، اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے پورا ایک روحانی نظام ہوتا ہے جسے ہم نظام تکوین کہتے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزوں کو آپ کی راہوں میں ایسے رکھتا چلا جاتا ہے کہ اب ادھر جانا ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں یہ بندہ آپ کی زندگی میں داخل ہو۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک آپ کے قلب کی اور آپ کی روح کی ایک آواز ہوتی ہے، آپ کے باطن میں رکھا گیا ایک رجحان ہوتا ہے، آپ کی طبیعت کا ایک میلان ہوتا ہے، تو آپ اس طرف جو ہے چلتے چلے جاتے ہیں، ویسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، ویسی سرگرمیاں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے آپ دوست بنا لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں میں اپنی اس اندر کی آواز کا اظہار کروں، اپنے اس رجحان خیال کا اظہار کروں، اس سے وہ ماحول بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ودیت کیا ہوتا ہے، جس بندے سے اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ آواز اس کو آتی رہتی ہے، تو نے ادھر جانا ہے، تو نے ادھر چلنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، اور پھر وہی اس کا ایک رجحان بناتی ہے۔ ایک ہمارا مادیت زدہ ماحول ہے، ہر چیز کو ہم صرف اور صرف عقل کے پیمانے پر ہی پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بہت ساری ہم ماورائی حقیقتوں کو، روحانی حقیقتوں کو اور مقاصد حیات کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ مادی دنیا کے ساتھ ایک روحانی دنیا بھی ہے، وہ روحانی دنیا محض خیالی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی دنیا ہے۔ لوگ اللہ کو ملاتا رہتا ہے، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، ایسی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، خود بخود ایسے لوگ آپ سے مل جاتے ہیں، ایسی بکس آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، ایسے حادثات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کا اس پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہاں اسباب کی دنیا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، تو اسباب ہیں، ایک کاز ہے، پھر اس کے نتیجے میں ایک ایفیکٹ ہے۔ جتنا مادی دنیا کا نظام ہے وہ اسی بیس پر ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ پہ۔ کوئی کام آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا اس سائنس کی دنیا میں یا اس مادی دنیا میں جس میں یہ کاز ایفیکٹ کا ریلیشن نہ ہو، لیکن جو روحانی دنیا کا کام ہے نا تو وہ تھوڑا اس سے آگے ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ سے آگے، وہ ایک اللہ کے فضل کی دنیا ہے اور اللہ کے کرم کی دنیا ہے۔ تو یہاں تو کوئی کاز ہوگا تو اس کا ایفیکٹ آئے گا، لیکن وہاں اس کا فضل ہے، اس کا فضل کس پر ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بس وہ اس کا فضل ہے جب جس پہ ہو جائے، جس پہ کرم ہو جائے۔ بچپن میں مطلب یہ ایک آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہوا جس سے اس نے مجھے اس طرف راغب کیا، پھر اپنی تعلیم وغیرہ کے دور سے گزرے، پھر اس جستجو کو علمی طور پر جاننے کے لیے ایسا ہوگا جو یہ باتیں ہیں، یہ تو باتیں ہیں نا، تو اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل
तहलील भी होनी चाहिए, तो उसके लिए मुताला था, लेकिन उसके लिए फिर मैंने बाई चॉइस फिलोसफी पढ़ी ताकि ये जो बातें हैं इसकी कोई लॉजिक भी सामने आए। तो उस तालीम का भी एक ये फायदा हुआ, फिलोसफी पढ़ी, इन हकायक को मैं किसी हद तक इल्म से रिलेट करके बयान कर सकता हूँ। इस तरह से ये रुझान शुरू हो गया। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि आप असल की तरफ कैसे आए आप भाई, तो हर इंसान की असल एक जैसी है या हर इंसान की असल मुख्तलिफ है? असल है क्या? हर इंसान की असल एक है। वो असल जो है वो राज़े इलाही है और हर इंसान में मौजूद है, हर इंसान में मौजूद है। जो इंसान पैदा हुआ है ना उसमें ये मौजूद है, और वो क्या मतलब इसमें के राज़े इलाही है। जो मुसलमान है ना उनमें एक नूर है जिसे हम नूर ईमान कहते हैं, असल की तरफ राग़िब करता रहता है। ईमान रोशनी, ईमान की रोशनी हाई लेवल पे होती है, कुछ में लो लेवल पे होती है, लेकिन वो टॉर्च का काम करती है, आपको रहनुमाई करती है। अब जो एक आदमी ईमान वाला नहीं है, मुसलमान नहीं, तो उसमें भी कहा ये रोशनी मौजूद है या नहीं है? उसमें मौजूद है, उसमें रूह की शक्ल में मौजूद है। जो इंसान जिंदा है उसमें रूह तो है ना, इवन ये कि वो ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, काफिर, रूह तो मौजूद है। तो रूह एक ऐसी रोशनी है, ऐसा एक नूर है कि जो आपको आपके असल की तरफ आवाज देता रहता है। इसकी आप मिसाल यूं ले लें, खुदा की जुस्तजू या इलाह की जुस्तजू या इलाह की मार्फत हर मजहब में है। अंदर जो है ना वो उसको कहता है कि कोई और जो तेरा क्रिएटर है, जो सुपीरियर है, जो तेरे काम कर रहा है, जो तुझे चला रहा है, तुझे रिस्क दे रहा है, जिसने तुझे पैदा किया है, तेरे मामलात में कोई है जरूर। खुदा की तलाश, खुदा की तरफ रगबत और रुजू इंसान की फितरत में शामिल है। किसी ने तलाश करते करते पत्थर को समझ लिया, किसी ने तलाश करते करते आग को समझ लिया, किसी ने तलाश करते करते सूरज को समझ लिया। जो चीज उसके सामने आई, जो उसको समझ में आई, उसने उसको समझ लिया। तो ये इसका मतलब यह है कि असल की जुस्तजू और असल की तलाश हर बंदे के अंदर रखी गई है। अब उस असल का सुराग लगाना, अपने उस रोशनी को पहचानना, उस रोशनी से हमकिनार होना और उसका सुराग लगाना, यही जुस्तजू है और यही असल है। आपके अंदर है, जिनके अंदर ईमान है वो एक प्लस पॉइंट है कि रूह भी है और साथ ईमान भी है, दो रोशनियां हैं। ईमान से महरूम है, उनके अंदर रूह तो है ना, रूह अधूरी है, एक अधूरापन है और एक प्यास है, और उस अधूरेपन और उस प्यास को पूरा करने के लिए वो बाहर की दुनिया में अपनी तकमील के लिए तलाश करता है कि कोई है ऐसा जो मैं इधर हूँ वैसा उधर कहाँ है। अब उस तलाश में इंसान जो है वो तहजीब में और सदियों के सफर में भटकता रहा है, कभी कहीं। अल्लाह पाक ने फिर उन भटकते हुए लोगों की परेशानी दूर की। कभी ये पत्थर को सुपीरियर समझ लेता है, कभी सूरज को सुपीरियर समझ लेता है, कभी आग को समझ लेता है, जो चीज ज्यादा उसे ताकतवर नजर आती है उसे समझ लेता है। तो फिर अल्लाह पाक ने ऐसे तो ये सारी जिंदगी भटकता रहेगा, कभी पत्थर के आगे सर पटकेगा, कभी आग के आगे, कभी सूरज के आगे, कभी पानी के आगे। तो फिर अल्लाह पाक ने कहा इसको समझ में नहीं आएगी। तो फिर अल्लाह पाक अपने नुमाइंदे, अपने बंदे जो उसकी आवाज सुन सकते थे, उसकी बात सुन सकते थे और आगे लोगों को बता सकते थे, वो बंदे अल्लाह भेजता रहा जिन्हें हम नबी और रसूल कहते हैं। वो बताते रहे कि बंदे जो तू भटक रहा है तो उधर, ये बंदे तुझे बताएंगे, इनकी तू बात सुन और समझ और अपनी असल को पहचान ले। तो इंसान के अंदर असल मौजूद है, अपनी तकमील की, अपने अधूरेपन को मुकम्मल करने की ख्वाहिश मौजूद है, उसी जुस्तजू में वो लगा रहता है। यानी बहुत कुछ अंदर है, रोशनी है अंदर, नूर है, असल है, हकीकत है। और इसलिए कहते हैं इंसान जो है वो अल्लाह का एक राज है। ये राज आश्कार हो जाता है, आसान नहीं हो जाता है। वो जैसे आपने कहीं जाना है, आप आसान समझ लें, आप गूगल मैप पे आप लोकेशन डालते हैं, वो लोकेशन तो उसी जगह पे मौजूद है ना, उसकी तरफ एक सीधा रास्ता भी जा रहा होता है, एक गली में से भी जा रहा होता है, कोई घूम के भी जा रहा होता है। कई दफा हमने वो गूगल मैप पे सफर शुरू किया, ओ अबे यार ये तो बिल्कुल सीधा रास्ता, इसने कहां से घुमा के हमें इतना गलियों से घुमा के वहां पहुंचाया। तो यही है इसमें, रास्ते की तरफ तो आप जा रहे होते हैं, बाजू का आपको कोई अच्छा रहनुमा मिल जाता है तो बताता है इधर उधर मत घूमना, सीधा ये रास्ता मैंने देखा हुआ है, पहले मैं इस पे जा चुका हूँ, तुम इधर उधर मत जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ, सीधा इधर चले। तो आज खुद जब आप चलते हैं तो कभी इधर दाएं, कभी बाएं, कभी इस गली में, कभी उस गली में। तो ये मिसाल बिल्कुल सही है। पहुंच जाता है बंदा भारत, जो चलेगा वो पहुंच जाएगा, जो तलाश करेगा वो पा लेगा। सर फुकरा कहते हैं कि ये सिर्फ रास्ता है, इसकी कोई मंजिल नहीं, या मंजिल मिल गई तो वो उसको तशबीह देते हैं कि आपकी मौत है मंजिल मिल जाना, सिर्फ रास्ता है, रंजू है, ये क्या है? देखिए ना, हम सब जो हैं एक लिमिट में हैं, हम वक्त में हैं, हम जमाने में हैं, हम एक महदूद तायुन में हैं। और जो भी मटेरियल चीज है, फिजिकल चीज है, मादी चीज है, उसका तायुन है ना, उसकी एक ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये अप है, ये डाउन है, ये इसका वेट है, ये इसका कलर है, उसकी एक डायमेंशन है, एक हदूद में मुतय्यन है। कोई भी चीज हो, पहाड़ हो, समंदर हो, जमीन हो, ये सैयारे हो, सबकी एक हदूद मुतय्यन है, एक शेप है उनकी, एक हद है, तायुन है उनका तायुन। तो जो तायुन में आ जाएगा वो फिजिकल होगा, जिसको आप नाप सकें, जिसको आप तोल सकें, वो पैमाइश में आ जाए तो फिर वो भी मादा हुआ ना, वो एब्सोल्यूट है। उसीलिए हम उसको कहते हैं
ایبسولوٹ ریئل، لا متناہی ہے، اس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اس کو ناپ نہیں سکتے، اس کا آپ وزن نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہے اس کا تعین نہیں ہے، پھر اس تک پہنچنے کی کوئی منزل میں کہیں پہنچ گئے آپ، بولے یہ رہا، تو یہ سفر ہی سفر ہے۔ بڑا خوبصورت ان دنوں شعر سنا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ سنا تھا کہ اس کا گھر لا مکاں ہے، دیکھا جو وہاں جا کے تو نہ مکاں ہے نہ مکی ہے۔ یہ سفر ہی سفر ہے۔ یہ کل بھی میں نے کہیں آپ دوستوں سے یہ بات کی، اتنی اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہے، بڑی بڑی بڑی۔ دیکھیں یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں داخل ہونے کے دو دروازے، چھوٹا ہے۔ یہ آپ کا جو علاقہ ہے اس میں داخل ہونے کے 100 دروازے ہوں گے۔ آپ کا شہر لاہور ہے، اس میں انٹر ہونے کے 1000 دروازے ہوں گے۔ آپ کا ملک پاکستان ہے، اس میں انٹر ہونے کا یہاں سے بھی لاکھوں دروازے ہوں گے۔ یعنی جو جتنا بڑا ہوگا اس میں داخل ہونے کے اتنے بڑے دروازے ہوں گے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اس سے کنیکٹ ہونے کے لامتناہی راستے ہیں، اس سے کنیکٹ ہونے کے، اس سے جڑ جانے کے۔ اس لیے کوئی اس کی حد اور تعین نہیں ہے۔ آپ نے جو ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، ایک شخص ہے وہ عبادت کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، ایک شخص ہے وظیفہ کرتا رہتا ہے، ایک شخص ہے نفس کشی کرتا رہتا ہے، سب اللہ ہی کو راضی کرنا چاہ رہے ہو۔ آپ نے یہ طریقہ اپنانی ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، یا اللہ تو نے کہا تھا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے، تیرے کنبے کی خدمت کر رہے ہیں، تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا۔ تو یہ بہت بڑی عبادت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عبادت لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ پہلی بار جب میں نے یہ حدیث پڑھی سرفخر، تو مجھ میں نے ایک وجدان کی ایک دھمال کی کیفیت تاری ہوئی۔ میں اکیلا بیٹھا تھا، پہلی دفعہ میری نظر سے جب گزری تو میرے اوپر ایک بڑی یعنی کہ وارفتگی کی کیفیت تاری ہو گئی۔ کتنی خوبصورت بات رسول پاک نے فرمائی، اتنی خوبصورت بات بتائی کہ بہترین عبادت لوگوں کی خیر خواہی ہے، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کا اچھا چاہنا۔ تو آپ سب یہی کام کر رہے ہیں، خیر خواہی چاہ رہے ہیں، خیر تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں، ان دکھ دردوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ بہترین عبادت ہے۔ ہم فی زمانہ کوئی بات ہے کہ مادہ اور روحانیت کا جو سلسلہ ہے، ہم بھی انسان ہونے کے ایک جسم ہے، اور اس کی دیکھ بھال، اس کی پاکیزگی، اس کا سب کچھ کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اسی طرح دو میں، لیکن روح کی بالیدگی اور پاکیزگی کے لیے ہمارے پاس کوئی نسخہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ایک بات اب تک سنی کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو اس غذا کے علاوہ اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ روح کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، اس کو پاکیزہ کرتی ہیں؟ بہت آسان کر کے اس بات کو کہوں، اللہ رب العزت کی ذات تعین میں لانا، سمجھنا، بیان کرنا عبث ہے۔ وہ ایک نور ہے، زمین و آسمانوں کا وہ نور ہے۔ اس نور سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ادھر بھی نور کی مقدار بڑھانا ضروری ہے۔ اس نور سے ہم آہنگ ہونے کے لیے پانی میں آپ پانی ملائیں تو مل جاتا ہے، پانی میں آپ مٹی ملائیں تو نہیں ملتا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نور کی جو مقدار ہے نا اس کو بڑھاتے جائیں، اپنے نور کو اجاگر کرتے چلے جائیں۔ اس کے لیے ایسے کام، ایسے اعمال جو آپ کی روح کو منور کریں، معطر کریں، اس کی آلائشیں دور کریں، اس کی ناپاکی دور کریں، اور ایک اور میں لفظ استعمال کروں، اس کے حجابات دور کریں۔ جو صحیح لفظ ہے اس کے حجابات دور کریں، جو اس پر حجابات ہیں۔ اور سب سے بڑا حجاب جو ہے وہ آپ کا یہ جسم ہے اور آپ کی خواہشات نفس ہیں۔ اب آپ اپنے جسم سے تو نہیں نکل سکتے نا جب تک کہ موت واقع نہ ہو، اور خواہشات سے بھی آپ نہیں نکل سکتے، خواہش ہے، اور اچھا لفظ استعمال کریں تو آپ کی زندگی کی ضرورتیں بھی ہیں، ان ضرورتوں سے بھی آپ نہیں نکل سکتے۔ تو ان ضرورتوں کو اور ان خواہشات کو اور اس جسم کو اس نور سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اسی کی رضا کے تابع کر، اس کی رضا کے تابع کر دیں۔ اور اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ خود اس نے بتایا ہوا ہے، انبیاء نے بتایا ہوا ہے، صوفیوں نے، ولیوں نے بتایا ہوا ہے، نیک لوگوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے، اپنے آپ سے نکلنا ہے، ذرا اپنی خواہش کو زیر کرنا ہے، اور زیر کرنے سے مراد ہے کہ اس کو تھوڑا سا کسی کوڈ آف کنڈکٹ میں لانا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ اپنے جسم کو بھی کوڈ آف کنڈکٹ میں لانا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ ہر کام میں، ہر لمحے میں، ہر قدم پر، ہر لمحے میں اپنا رخ اس کی طرف رکھنا ہے، اس کی رضا کی طرف رکھنا ہے۔ تو خود بخود آپ نور حاصل ہوتا چلے جائے گا۔ جو آپ کچھ لفظ ادا کرتے ہیں وہ نور بنتے ہیں، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں وہ نور بنتا ہے، آپ کچھ اچھی سوچ سوچتے ہیں وہ نور بنتا ہے، اور یہ نور آپ کی روح کو اتنا نورانی کر دیتا ہے، اتنا نورانی کر دیتا ہے کہ اس نور کی فریکوینسی سے ہم آہنگ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور وہ جو میں نے وجدان کی بات کی تھی، انٹویشن کی بات کی تھی، وہ پھر ایک لے، ایک فریکوینسی جس کو ہم سائنس کی زبان میں کہتے ہیں، وہ آپ کی ملنا شروع ہوتی ہے، اندر کی، آپ کے اندر کی، ادھر کی۔ وہ تو پاک ہے نا، اس کا تو نام ہی پاک ہے، وہ پاک ہے۔ پاک سے ہم آہنگ ہونے کے لیے آپ کو
पाक होना पड़ेगा और खुसूसन इनर सेल्फ को पाक होना पड़ेगा। तो नीयत की दुरुस्तगी आपके इनर सेल्फ को पाक करती है। हमारी नीयतों में फतूर होता है, हम काम कर रहे होते हैं, लोगों के सामने अच्छा होता है, लेकिन अंदर नीयत में फतूर होता है। हमारे अंदर हम काम कर रहे होते हैं, इखलास नहीं होता, कोई गर्ज होती है छुपी, काम बहुत नेकी का कर रहे होते हैं, पीछे कोई गर्ज छुपी होती है, नीयत दुरुस्त नहीं होती, इखलास नहीं होता, अमल जो है वो किसी मकसद के हसूल के लिए कर रहे हो, किसी टारगेट के हसूल के लिए कर रहे हो। तो अगर हम अपनी नीयत में इखलास पैदा कर लें, नीयत दुरुस्त कर लें, अपने अमल में इखलास पैदा कर लें, मकसद अपना रख लें अल्लाह की रजा, खैर, तो वो खुद ब खुद आपको एक नूर के सफर में ले जाएगा। आपके अंदर नूर भरता जाएगा, फिर हकायक आप पर मुनकशिफ होना शुरू हो जाएंगे, आपका इदराक खुलना शुरू हो जाएगा, हकायक मुनकशिफ होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे एक दिन एक आपके अंदर की आवाज और आपके अंदर की रोशनी आपको असल हकीकत से हम आहंग कर रही है। एक सवाल ये है कि इस मौजूद में बात बहुत की जाती है और हम बिलीवर हो के जो दीन इस्लाम के अलावा एक जो एरिया है जिसमें हम बात भी करते हैं तसव्वुफ या सूफीज़्म, इसके बारे में लोगों के पास क्लैरिटी कुछ है भी शायद नहीं भी है, जैसे मैं क्लियर किया था कि सूफीज़्म तसव्वुफ इस्लाम से अलग कोई पैनल निज़ाम है या ये उसी का हिस्सा है और उसकी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है उन मामलात से जो कि। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, ये रूहानी ताकतें और रूहानियत। तो इस पे आप देखते हैं कि हिंदुइज्म में भी काम हो रहा है रूहानी ताकतों पर, रूहानी सलाहियतों को हासिल करने पर, और बुद्धिज्म में भी आपने देखा कि लोग काम कर रहे हैं। दीगर मज़ाहिब में भी रूहानियत का तसव्वुर मौजूद है, रूहानियत का हसूल भी मौजूद है और रूहानियत के कुछ वो अमल भी करते हैं। उनके लिए तो वो रूहानियत है, यानी कि गैर मादी कोई ताकत हासिल कर लेना, कोई अमल हासिल कर लेना, कोई प्रैक्टिस कर लेना, अपनी इनर सेल्फ से अपनी रूहानी ताकतों को जो है वो थोड़ा सा ताकतवर कर लेना, उनसे कोई काम ले लेना, तो ये तो मौजूद है, दीगर मज़ाहिब में भी मौजूद है। पूरी दुनिया में हमें ऐसे लोग नजर भी आते हैं। वो वहां तक है बस। जो इस्लामी तसव्वुफ है, यानी उन ताकतों को एक नूर इलाही से हम मांग करता है, वो सिर्फ रूहानी ताकत का हसूल नहीं है, बल्कि वो मार्फत इलाही के हसूल की तगदो है, मार्फत इलाही की हसूल की तगदो है। उसे हम कहते हैं ये राह सलूक का मुसाफिर है, ये चलता जा रहा है, सलूक की मंजिलें तय करता जा रहा है, रूहानियत के सफर पे सलूक की मंजिलें तय करता जा रहा है, और इसका मकसूद जो है हर कदम पे अल्लाह की रजा है, अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की मार्फत है और अल्लाह का कुर्ब है। वो सिर्फ रूहानियत को एक ताकत और एक पोटेंशियल के तौर पर लेते हैं, हम उस पोटेंशियल और उस ताकत को एक मंजिल की तरफ मुतय्यन कर देते हैं। अल्लाह को हम सब मानते हैं, ये मानने से आगे जानने का अमल है, जिसको हम मार्फत कहते हैं। उस जो एक दूरी आ गई कि हम हमारी ये रूह हमारे जिस्म में आ गई, अपने आप को महसूस करते हैं, जिसको हम बेगानगी कहते हैं, एलिनेशन कहते हैं, वो कहता है इस दूरी को मैं खत्म करना चाहता हूँ। वो सफर शुरू करता है और मैं इस अनजानपन को खत्म करना चाहता हूँ, अजनबियत को। अगर मेरी रूह का अल्लाह से ताल्लुक है, ये भी नूर है उधर भी नूर है, तो ये जो अजनबियत है मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये जो मादी दुनिया में और मेरे जिस्म की कसाफतों में मैं एक अजनबियत पैदा कर दी, इसको खत्म करना चाहता हूँ। एक दूरी है, इसको खत्म करना चाहता हूँ। एक हिजाब है, इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो जब वो मरकज बनाता है अल्लाह की तरफ चलने को, उसकी पहचान यानी मार्फत इलाही को, उसके करीब होने को, कुर्ब इलाही को, उसकी खुशनुदी रजामंदी को, रजाए इलाही को, फिर वो सारी रूहानियत तसव्वुफ बनती है, जिसे हम इस्लामी तसव्वुफ कहते हैं। पावर्स तो वो लोग भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी पावर है किसी का काम के लिए, किसी अमल के लिए। जिस तरह हमारे यहाँ कहलाते हैं ये आमिल है, अमलियात करता है, लेकिन इसका ताल्लुक इस्लामी तसव्वुफ का इससे नहीं है। वो मैंने कहा तीन चीजें हैं ना, उसकी जानिब सालिक का सफर, उसकी जानिब सालिक का सफर, दूरी और दूयत को खत्म करना, उसकी पहचान, उसकी मार्फत और उसका कुर्ब। तो दूयत है ना, दूयत तो है, मैं खुद एक दूसरा हूँ, ये जमान भी दूसरा है, ये चीजें भी दूसरी हैं, वो तो एक है। तो फिर इतना कुछ ही और क्या है, इसकी नफी करके इसके अंदर जो असल नूर है उसको पहचान के हर एक चीज में उसी का नूर, उसी का जलवा तलाश करना, देखना और उस एक ही का हो जाना। इस तरफ जब सफर करते हैं हम इस अंदाज में, वो रूहानियत जो है फिर वो इस्लामी तसव्वुफ बनती है। यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है सर आपकी इस बात से, बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गया तसव्वुफ और रूहानियत के हवाले से कि राह हक सलूक का सफर है हक ताला की तरफ। तो यहाँ पे जो आज माशरे सोसाइटी में लोग तावीज़ और जादू जैसे आमिल बाबा की बात की, तो ये जो माशरे में ये चीज पैदा हो रही है, इसकी वजह से जो नौजवान है खासतौर वो इसको तसव्वुफ के साथ
रिलेट करते हैं। उनको तो वाज़ेह नहीं, उन्होंने तो पढ़ा नहीं, उनको तसव्वुफ की असल हकीकत का भी नहीं पता। तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि ये क्या ये तसव्वुफ को या रूहानियत को भी हिस्सा है या वो अपने नफ्स के लिए सारा कुछ है? एक तो देखे ना, हर शोबे में असल भी है और नकल भी। इसी तरह यानी इस तसव्वुफ जो एक तक़द्दुस है और जो पाकीज़गी है और जो लोग सूफियों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए बहरूपिये, बहुत सारे बहरूपिये सूफियों का लिबादा ओढ़ कर इस राह पर आके बैठे, और वो मैं कहता हूँ राहजन है, वो नकब लगाने के लिए बैठे हुए हैं। जो तसव्वुफ की तलाश में चला हुआ उसको हम झपट के अपने दाम में फंसा ले। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये है कि असल भी मौजूद है, असल की पहचान भी है, आपके इल्म में इजाफा करे और आपके अंदर आखिरत का खौफ पैदा करे। और कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की जिक्र की कुंजियां हैं, उनके पास बैठो, उनको देखो, उनसे उनका जिक्र सुनो तो तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है। और एक इत्मीनान क़ल्ब, जिसको सकीना का लफ्ज़ कहा गया, सकीना इत्मीनान क़ल्ब, उनको देखने से उनकी निशिस्त में दिलों पर हासिल होता है। तो आप कभी किसी गलत आदमी के पास बैठ जाएं, आपको ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग हो, या एक आदमी कोई बहुत बड़ा बहरूपिया है, उसने कुछ वक्त के लिए आपको अपने ट्रैप में ले लिया या अपने उस शोबदाबाजी में ले लिया, लेकिन बहुत जल्द वो टूट जाएगा और आप पे खुल जाएगा कि ये बंदा असल नहीं है। बाकी ये है कि जो लोग इस तसव्वुफ की राह से वाबस्ता होते हैं तो बहसियत बशर, बहसियत इंसान, उन्हें परेशानियां आती हैं, कुछ मुश्किलात दरपेश आती हैं, कुछ मसाइल दरपेश आते हैं, तो वो अपने उस रहबर, रहनुमा या मुर्शिद के पास जाते हैं, ये मसला है, ये परेशानी है, मैं क्या करूं? तो वो उसमें उन्हें बता देता है कि अल्लाह को इस तरह से याद करो, अल्लाह का ये इसम पुकारोगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, अल्लाह का ये इसम पुकारोगे तो ये काम हो जाएगा, ये दुआ पढ़ोगे तो ये काम हो जाएगा, इस तरह से पढ़ोगे, इतनी तादाद में पढ़ोगे तो ये काम हो जाएगा। तो वो इतना बता देते हैं। बाज़ लोग जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं होते या इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते या पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उन्हीं आयात को लिख कर गले में डाल दिया जाता है। आयत को लिख के अगर गले में डालेंगे तो कुरान है, उसका एक अदब है, उसकी एक ताजीम है, उसकी एक पाकीज़गी है। हर बंदा उस पाकीज़गी का और उस ताजीम का ख्याल नहीं रख सकता, तक़द्दुस का ख्याल नहीं रख सकता। उसके लिए फिर उस आयत को आदाद में तब्दील कर दिया जाता है। आसानी से आपको समझाऊं, जैसे आप लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसको अगर आप आदाद में लिखें तो आप 786 लिख देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको आप 92 लिख देते हैं। ये एक इल्म है, तो उसको वो उसमें तब्दील करके तो अपने उस वाबस्ता शख्स जो है या जो साइल आया है उसकी रहनुमाई के लिए वो लिख के उसके गले में डाल देते हैं। तो ये इस हद तक तो ठीक है, लेकिन अब इसको एक पेशा बनाना और इसको एक कारोबार बनाना और इसकी बुनियाद पे एक ढोंग रचाना कि आप उसके अहल ही नहीं है और लोगों को लिख लिख के दिए चले जा रहे हैं, लोगों को बताए चले जा रहे हैं। एक डॉक्टर है ना, वो नुस्खा लिख सकता है, मैं वो नुस्खा नहीं लिख सकता, जानने के बावजूद भी नहीं लिख सकता, मैं उसका अहल ही नहीं हूं तब तक कि मैं MBBS ना कर लूं। ये हमारे मुल्क में तो चल जाता, बाहर मुल्क में तो आप नुस्खा जब तक नहीं दिखाते वो दवा नहीं देते आपको, और वो मुस्तनद डॉक्टर लिखता है तो दवा देते। तो हमारे यहाँ तो आप चले जाएं तो दवा का नाम बताएं वो दे देते हैं, मैं लिख के दे दूं दे देते, वो वैसे नहीं देते, बगैर नुस्खे के। जो अहल है वो लिखेगा, जो अहल है वो बताएगा। वो हर एक से मंजिल का पता पूछ रहा है, गुमराह मेरे साथ हुआ रहनुमा भी। जिसे खुद रास्ते का नहीं पता वो किसी को रास्ता क्या बताए, जो खुद अंधेरे में भटक रहा है वो किसी को रोशनी क्या दिखाए। तो असल की तरफ जो है सफर के हवाले से हदीस मुबारका भी है जी, और आरफ़ नफ्सहु फक़द आरफ़ रब्बहु जी। अब इसकी तशरीह एक मुहद्दिसीन का तबका है उन्होंने की है जी, एक उलमा का तबका है जी, उन्होंने की जी। तो उलमा के यहाँ इसका जो माना मफ़हूम क्या है? इसमें यह है कि जिस तरह मैंने शुरू में आपसे अर्ज की ना कि इंसान अल्लाह का राज है, और राज इसलिए है इस मिट्टी के पुतले के अंदर एक बहुत ताकतवर नूर मौजूद है जिसे हम रूह कहते हैं। और रूह जो है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है कि आपका जिस्म जो है वो किससे हम कहेंगे जी अनासिर से मिलकर बना है। साइंस बताती है कि बहुत सारे अनासिर हैं उनसे मिलकर बना है। अनासिर कहाँ से आएंगे? या मिट्टी से आएंगे, या आग से आएंगे, या पानी से आएंगे, या हवा से आएंगे, जिसे हम कहते हैं कि जी ये ठोस है, माया है, गैस है। इन्हीं में से मादे इन्हीं शक्लों में होते हैं, ठोस, माया, गैस, उनमें से आएंगे, एलिमेंट से आएंगे, या आग, मिट्टी, पानी, हवा से आएंगे। तो इससे ये इस मिट्टी से गूंद के ये पुतला बना है। तो ये अनासिर आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर रूह मौजूद है वो किस चीज से मिली है? आप क्या बता सकते हैं कि पानी से बनी हुई है, आग से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, कौन से मॉलिक्यूल से बनी हुई है, कौन से बैक्टीरिया से बनी हुई है, कौन से सेल से बनी हुई है, इसका बेसिक एलिमेंट क्या है? नहीं बता सकते आप। वो एक नूर है। और वो नूर कैसे है? उलमा भी इसको बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम का बुत बन गया, वो हरकत नहीं करता था, वो चलता नहीं था, वो बोलता नहीं था, वो देखता नहीं था, बन खूबसूरत गया, ऐसे ही आंखें, नाक, कान, एहसन तक़वीम, बहुत अच्छा बन गया, खूबसूरत बन गया, लेकिन वो
वो हरकत नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, बना दिया। अल्लाह पाक ने क्या कहा, ये उलमा कराम जानते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि उसमें रूह फूंक दी। कहां से आई? अल्लाह ने रूह फूंक दी। रूह का ताल्लुक जो है वो ज़ात इलाही से, नूर इलाही से, और यही नूर जो रूह की शक्ल में आया, जब आप इसको पहचानते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, मुराकबा करते हैं, इसको पहचानते हैं और इसको पाक साफ करते हैं, क्योंकि वो भी पाक है और हम यहाँ आके गुनाहों से आलूदा हो गए और इस जिस्म की कसाफत से आलूदा हो गए, तो दूयत भी है, दूरी भी है और कसाफत भी है। हमने इस दूयत को, दूयत से मुराद अल्लाह के अलावा जो भी गैर है उसकी नफी, एलिनेशन है, बेगानगी है, उसकी नफी, और जो कसाफत है हमारे मादी जिस्म की कसाफत भी, गफलत की कसाफत भी और गुनाहों की कसाफत, इस सबको जब आप दूर करते हैं और अपने अंदर झांकते हैं तो आपको अपने अंदर नूर ही नूर नजर आता है। और आप नफी, जिसे हम ला कहते हैं, ला के प्रोसेस में आते हैं, नफी के प्रोसेस में आते हैं, नथिंगनेस के प्रोसेस में आते हैं, कुछ नहीं माँ सिवा अल्लाह। अपने अंदर आप एक नूर ही नूर देखते हैं, इतना उस नूर में आप मुतज़न और मदगम होते हैं कि आप अपने जिस्म की कसाफत और दुनिया और मादी कसाफतों को भूल जाते हैं। तो फिर वो जो नूर है आपको उस नूर से हम आहंग करता है, उस नूर की खबर देता है, उस नूर की तरफ ले जाता है। इसलिए अपने उस अंदर को पहचानना और अपने नफ्स की मार्फत हासिल करना, अपने अंदर की मार्फत हासिल करना, अपने नूर से शनासा हो जाना, अपने नूर से हम आहंग हो जाना, वो आपको उस जात की मार्फत अता करता है। इसलिए कहते हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया। ये रूह एक अल्लाह का राज है, अल्लाह ने बंदे के अंदर रखा हुआ है और इसका जो गेट है वो कल्ब है। कल्ब से इसके एंट्रेंस का रास्ता खुलता है। तो इसलिए जो सूफियां हैं वो कल्ब पर ज्यादा जोर देते हैं, कल्ब को रोशन करो, कल्ब को मुनव्वर करो, कल्ब को जिक्र में लगाओ। तो इस तरह से फिर आप उस तरफ चले जाओ। अच्छा भाई ने अपने लफ्ज इस्तेमाल किया जो ये सुनते भी आए थे कि राह सलूक ना, ये क्या ये सारे लोग सालिक हैं या इनको सालिक होने के लिए क्या करना है कि इस मादी दौर में जहाँ इतना विशेष सर्कल है उसमें ये सालिक भी रहे, सालिक होता क्या है, राह सलूक होती क्या है, उस पे सफर की कंटिन्यूटी जो है वो कैसे होगी? बस जो मैंने बयान किया था ना कि नियत का दुरुस्त हो जाना, अमाल में इखलास का पैदा हो जाना, मकसूद जो है कोई शे ना हो माँ सिवा अल्लाह के, तो बस फिर कोई भी आप काम करेंगे राह सलूक के मुसाफिर। आप ये जो काम कर रहे हैं ये भी आप राह सलूक के मुसाफिर। अल्लाह की रजा आपकी मंजिल होनी चाहिए, अल्लाह का कुर्ब आपकी मंजिल होनी चाहिए। ये जो आप खिदमत कर रहे हैं तो आप राह सलूक के मुसाफिर हैं। बाकी ये है कि जब आप इस तरफ शौक ज़ौक रखते हैं तो जिस तरह आप किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं, किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेंगे, मेडिकल पढ़ना है तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लॉ पढ़ना है तो लॉ कॉलेज में दाखिला लेंगे, तो इसी तरह रूहानियत पढ़नी है तो किसी रूहानियत वाले कॉलेज में दाखिला लेंगे। तो वो रूहानियत के सलासिल हैं, वो रूहानियत के तरीके हैं और उसका उस्ताद जो है वो शेख कहलाता है, मुर्शिद कहलाता है। तो जब उस मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं, जो उसका तरीका है उस पे चलते हैं तो आप सालिक कहलाते हैं। तो ये मैंने कहा ना हर बंदे में मौजूद है, जो मैंने शुरू में कहा कि हर बंदे में मौजूद है। मुसलमानों में डबल पावर से मौजूद है कि ईमान भी है, ईमान का नूर भी है, रूह का नूर, और जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं जो इस तरफ नहीं है तो उनके अंदर ईमान के नूर तो नहीं है, उनके अंदर ये रूह का नूर है और बिल्कुल रूह का ताल्लुक ज़ात इलाही से है और वो जुस्तजू करती है उसकी तरफ। इसलिए देखें बहुत से लोग मुसलमान होते हैं, वो तलाश करते करते किसी बंदे के पास पहुंच जाते हैं, वो अधूरापन तो अंदर है ना रूह के अंदर, तो वो पहुंच जाते हैं, वहां हासिल हो जाता है। आपने जो सवाल पूछा था उसमें एक और यानी इजाफा यूं कर दें कि ये जो दम तावीज़ात वगैरह ना, ये रूहानियत नहीं है, ये रूहानियत का एक बाई पार्ट है। वो जो उनसे वाबस्ता लोग हैं उनकी मुश्किलात परेशानियां हल करने के लिए वो कुछ तरीका बता देते हैं, तो वो है। ये टोटल रूहानियत नहीं है कि हम कहें कि ये दम तावीज़ ही सारी की सारा तसव्वुफ है और सारी की सारी रूहानियत है। रूहानियत रजू इल्लाह का नाम, मार्फत इलाही का नाम है, कुर्ब इलाही का नाम, अपनी जात की नफी का नाम, अपनी ख्वाहिशात की नफी का नाम और अपने नफ्स पर सवारी करने का नाम, उसको जेर करके पटक देने का नाम। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही बन गया। एक शख्स है उसने जो है वो कोई बनाया आस्थाना वगैरह और दम तावीज़ कर ये पीर साहब हैं और ये रूहानियत, ये इसका एक छोटा सा एक हिस्सा है, एक जुज है, इसका ताल्लुक उससे जरूर है लेकिन सारा का सारा ये रूहानियत नहीं है। ये तो मिसकॉन्सेप्शन है ना। और एक झूठे शख्स को पकड़ के आप सच्चे शख्स की नफी कर दें। अब हम बुत को देखें, झूठे खुदा को देखें तो क्या अच्छा ये खुदा होते हैं जिसकी हमें तालीम दी जा रही, खुदा नहीं होता। तो हम इस बुत को देख के जो खुदा के तौर पर माना जा रहा है असल खुदा की नफी तो नहीं कर सकते। तो एक बुराई को देख के, एक गलत शख्स को देख के हम नेक शख्स की नफी तो नहीं कर सकते। तो इसी तरह से माशरे के अंदर जहाँ हर जगह हर शोबे में हर तबके में बुराई फैली हुई, तो इसमें भी है। इसमें ज्यादा है। क्यों ज्यादा? इसमें लोगों को पहचान नहीं। फुकरा तो गोशा नशीन होते हैं, जात की नफी करते हैं। अपनी जात को प्रोपेगेट करने वाला अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? अपनी जात की नमूद और नुमाइश करने वाला अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? अल्लाह बड़ा है और हम छोटे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने वाला अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? कोई बहरूप, हमें तो अपना ये रूप मिटाना है ना,
उसके ऊपर कोई बहरूप चढ़ाकर मलम्मा साजी करके अल्लाह वाला बनने वाला वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आजिज होगा, वो अपनी जात की नफी करने वाला होगा, वो आपका पर्दापोश होगा, आपकी पर्दापोशी करने वाला होगा, आपके राज रखने वाला होगा, आपके ऐब छुपाने वाला होगा, आजिज होगा और खुद अपनी जात को छुपाने वाला होगा। वो कैमोफ्लेज कर लेगा, अपने आप को ऐसा बना लेगा कि आप उसको पहचान न सके। तो जो ये अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और अलकाबात लगा रहे हैं, तो सूफी की तारीफ की ही नफी है, वली की तारीफ की ही नफी है। अल्लाह बुलंद करता है। ये डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब बैठे में फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के जिक्र में लगा दी उनके दुनिया में उन वलियों के डंके बज रहे। कोई पोस्टर नहीं छपता, कोई इश्तिहार नहीं लगता, बल्कि लोग रोक रहे होते हैं उधर मत जाना, वहाँ ये है ये है ये है ये। वो खलकत उस तरफ टूटी पड़ रही होती है। अल्लाह ने उनके झंडे बुलंद किए हुए हैं, उनके नामों के चर्चे हो रहे हैं, तो वो अल्लाह बुलंद करता है। खुद अपने आप को बुलंद करने वाला, खुद अपने नाम के चर्चे करने वाला, एडवर्टाइजिंग करने वाला, अपने आप को प्रोपेगेट करने वाला, ये तो तसव्वुफ की तारीफ की ही नफी, वो सूफी कैसे हो सकता है? तो ये बात ये है कि आप सब बच्चे हैं, नौजवान हैं, मेरे लिए तो ये मेरी थोड़ा सा जो वो फील भी हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे काबिल लोग, डॉक्टर नईम अनवर नौमानी साहब बैठे हुए हैं, सर फखर अतुल्लाह ताहिर से बैठे, उमर साहब ये भी आप बता रहे हैं कि फाजिल हैं माशाल्लाह, उमर दराज साहब। तो ऐसे लोगों के सामने ऐसी बात करते हुए थोड़ा सा मुझे महसूस भी होता है, ये तो बच्चों से गुफ्तगू होती है, लेकिन जरूरत इसी अमर की है कि बिल्कुल आम फहम अंदाज में, आम बातों के अंदाज में, सादा अंदाज में ये बातें समझाई जाएं। तरीका जो आपने आज अपनाया है, वासिफ अली वासिफ साहब इसी तरह से गुफ्तगू करते रहे और बहुत से लोगों को उन्होंने सिर्फ राग़िब किया, और अशफाक अहमद साहब इस तरह से गुफ्तगू करते रहे, बिल्कुल आम सी सादा सी बातें। तो हर शख्स जो है एक जमाने से बाबा तलाश कर रहा होता था क्या हो गया भाई, अशफाक साहब की गुफ्तगू सुनी, कोई उन्होंने कोई खानका आस्थाना या कोई अपना ऐसा गेटअप नहीं बनाया हुआ। तो ये अच्छा आपने सेशन किया है और ये मैं बहुत खुश हूँ कि आप एक कार्य खैर कर रहे हैं, जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, जो महबूब खुदा की खिदमत कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई काम नहीं, इससे बढ़कर कोई काम नहीं जो आप काम कर रहे हैं। ये बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन इबादत है जो आप कर रहे हैं, और अल्लाह के यहाँ ये मकबूल ही मकबूल है। हम वज़ाए पढ़ते हैं, चिल्ला कशी करते हैं और बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं, सुबह शाम रियाजतें करते हैं, नफ्स कशी अपनी करते हैं इस मंजिल को तय करने। तो डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाएं, मेरी बात को ये इंडोर्स करेंगे, तस्दीक करेंगे। कल मैं कह भी रहा था कि हम इतना कुछ करते हैं और पता नहीं अल्लाह को पसंद है या नहीं है, कबूल है या नहीं है, पता नहीं आगे हमारा क्या होगा, है ना। वो तो नुक्ता नवाज, नुक्ते पे नवाज भी देता है और नुक्ते पे रगड़ा भी लग सकता है। तो लेकिन रसूल पाक ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला क़यामत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे होगा। हमें कुर्बे रसूल के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो रसूल अकरम ने फरमा दिया, फिर कुछ शक व शुबा ही नहीं है। कुर्बे रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हासिल होगा। रसूल पाक ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला, उसकी परवरिश करने वाला क़यामत में मेरे साथ। डॉक्टर साहब ऐसे ही यूं फरमाया आपने, यूं करके फरमाया मेरे साथ ऐसे हो। तो जिसके लिए सूफी इतनी तवज्जो करते हैं, विर्द, वज़ाइफ, दुआएं, चिल्ले, रियासतें, नफ्स कशी, वो रसूल पाक ने आपको गारंटी दी हुई है कि जो यतीम की कफालत करेगा वो मेरे साथ ऐसे होगा। आप सब राय सलूक के इस तरह से मुसाफिर है और बड़ी बड़ी अल्लाह पाक कबूल भी करेगा इंशाअल्लाह। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनके पास जाया करता था, जिस जमाने में मैं शेख और मुर्शिद तलाश करता था तो हर जगह जाता था, वो मुझे मिल गए। उनका अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र रोशन मुनव्वर फरमाए। उन्होंने मुझे बड़ा संभाला। एक जमाने में जब फिलॉसफी पढ़ना शुरू की ना सरफखर, तो थोड़ा सा दहरियत की तरफ रुझान हो गया, फिलॉसफी पढ़ के तो रुझान हो गया। उनके पास जाके तो हम ऐसे उल्टे उल्टे सवाल करते थे, ना, यानी यहाँ तक के खुदा के वजूद पे सवाल करने लगे तो वो रोना शुरू कर देते। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलो, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलो, ऐसे। वो हमें जो है उन्होंने बड़ा उस वक्त मुझे संभाला था। वो उस वक्त जमाने में क्या करते, बेटा इबादत करनी चाहिए, इबादत फर्ज होती है, इबादत करनी चाहिए, लेकिन इबादत कभी की आप बैठे हुए उमर दराज साहब भी, और वो कहा गए तुम्हारी नमाजें उठा के तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। तो कहा इबादत रद्द भी हो जाती है, बेटा खिदमत किया करो, खिदमत रद्द नहीं होती। नमाज तो आपके मुंह में मार दी जाएगी। और वो फरमाया ना कि कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। आप तो सारा दिन रोजा रखे हुए, शाम को टाइटल मिला कि भूख प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। वो कहते थे कि तुम्हारी बात नहीं हो सकता तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए, और ये तो कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है मार दी जाती है। कहते बेटा खिदमत करो, ये बात है जो फराइज है उसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। इस बात से ये मतलब अखज़ ना किया जाए, ये बात जो फराइज है वो तो अदा करने ही करने, वो तो ड्यूटी है, फर्ज है, करना है, उसमें तो छूट नहीं है। लेकिन वो कह रहे थे कि जो इस तरफ का सफर है ना वो आप तय करें खिदमत से, खिदमत रजा नहीं होती, क्योंकि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह के कुंबे की जब आप अल्लाह की रजा के लिए खिदमत करेंगे ना तो वो इसकी जजा और अजर जरूर देगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये कह रहा था, कंक्लूड करते हैं कि आप लोगों में शौक, ये ज़ौक़, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ ना, और अभी भी मेरे नौजवान से इंटरेक्शन होता है, इसके एंटी डायरेक्शन में हमारी नौजवान नस्ल जा रही है, और उनको इधर बुलाएं भी तो हंसते हुए कहते हैं टाटा बाय बाय, नहीं आते इधर। तो आप लोगों का
یہ ذوق، یہ شوق، یہ لگن دیکھ کے میں بہت خوش ہوں، اور یہ یقیناً آپ کے روح کے اندر جو نور ہے اس کی طرح. یہ غالباً آج ہمارا چوتھا پانچواں یا لاہور میں سیشن ہے، اور آپ اسی ذوق اسی شوق سے آ رہے ہیں. یہ ایسے کانسیپٹس ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں، اور سادہ اور آسان، یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ راہ سلوک کے مسافر بن ہی جائیں. تو ایک اور لیکچر ہے، یہ مجھ سے پوچھنا، میں نے کہا ایک ہے وہ ابھی دینا ہے آپ لوگوں کو، پاور آف ورڈ. بس یہ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر جس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ آپ کو. لیکن اللہ آپ لوگوں کو سلامت بھی رکھے اور آپ کے اندر جو نور ہے اس کو بڑھائے اور بہت بہت سارا خیر عطا فرمائے. تو بہت شکریہ، آپ لوگ سن لیتے ہیں. تو میں تو ادھر ادھر کوئی آج تو موضوع تھا ہی نہیں، انہوں نے کہا جس طرح ڈرائنگ روم میں باتیں کرتے ہیں ایسے باتیں کریں. جیسے آپ نے کہا جی کہ ہم رائس شروع کے مسافر بھی ہیں، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں شاید کہیں نہ کہیں پہنچائے گا. اسی طرح آپ بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ لانے کے لیے بہت بڑی طاقت. یہ ایک اچھا شعور انہوں نے نام رکھا ہے نا. تو یہ کار خیر بھی کر رہی ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ کو سوشل ورکر بنایا ہوا ہے، آپ کے ذہن کا شعور اجاگر کرنے کے لیے یہ بڑا کام یہ کر رہی ہیں. اور سر فخر اللہ طاہر صاحب بیٹھے تھے نیچے، میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی کراچی میں خدمت خلق کا بہت کام کرتا ہوں، اور میرا بہت بڑا وسیع حلقہ ہے وہاں. لیکن میں یہ صرف یہاں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ بیٹھی ہوئی گواہ ہے، وہ ہمارے گھر سے ہماری اہلیہ بیٹھی ہوئی گواہ ہے کہ ہم ہر جگہ یہ کہتے ہیں، بڑے سے بڑے پلیٹ فارم پہ علل اعلان ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام سے بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. جو صوفیہ کی جو خانقاہیں ہیں ان کا کام کیا ہے؟ خدمت خلق کی تو ہے، خدمت انسانیت کی تو ہے، محبتوں کو تقسیم کرنا ہی تو ہے، وہ کام سب آپ لوگ کر رہے ہیں. تو بہت بڑے صوفی ہیں آپ لوگ. آپ نے بھی کہا کہ خدمت خلق جو ہے وہ اسی راہ میں جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے. ہم سب، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے ہماری ایک نوکری لگائی ہے، ورنہ ہماری کیسی ایسی قسمت تھی. ہاں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ بچیاں ہیں، یہ اور سارا یہ اپنی زندگی صرف وقت کی ہوئی ہے. سر تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں کیا یہی سب کچھ ہے؟ کبھی کبھار یعنی اس سیشن سے پہلے چیز ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے میں آپ سے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کنیکشن ابھی بھی اللہ سے، اس کے رسول سے کمزور ہے. ہم بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کمزور پڑ جاتے ہیں بہت. ہمیں جو ایک چیز سمجھ آتی ہے جو ہم نے فرض کیا کہ شاید ہمارا کنیکشن ابھی یہ ایسے، یہ سوچ ہمیشہ رہنی چاہیے، اور کیا مرتے دم تک ایسی ہی رہنی چاہیے. جس کو یہ ہو گیا کہ میں مکمل ہو گیا، میں پوتر ہو گیا، میں پاک ہو گیا، تو وہ اسی دن گیا، اسی دن گیا. یہ سوچ تو مرتے دم تک رہنی چاہیے. یہ بھی تباہ کرتی ہے. بڑے بڑے صوفی اس سوچ پہ اب تو میں پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، جہاں یہ خیال آیا وہاں گیا. اصل موجود ہے، مومن ہے، اس کے اندر روح ہے، یہ اور ایمان بھی ہے. تو سر ہم ایز اے نوجوان ہمیں کیسے پتا ہم اصل موجود ہم اس تک کیسے پہنچے؟ یہ پہنچ رہے ہیں نا، یہ یعنی سفر ہے، یہ سفر ہے. وہ آپ کے اندر کا نور بڑھتا جاتا ہے، آپ کے اندر کی پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے. یہ مشکل ہے جو بات میں کر رہا ہوں، کبھی الگ سے سمجھائیں گے. دوئیت ختم ہو جاتی ہے، لا الہ ما سوا اللہ، ہر غیر کی نفی کرنا، اس دوئیت کو ختم کرنا. یہ اتنی آسان سی بات ہے نا، یہ اتنی آسان نہیں ہے. تو بس آپ کے لیے، میرے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنا مقصود رضائے الہی کو رکھیں. آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، کسی بندے کو اٹھا کے لا رہے ہیں، کسی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ رضائے الہی کو، یا اللہ تو راضی ہو جا، تیری مخلوق کی یہ خدمت کر رہے ہیں، تو راضی ہو جا، بس کرتے جائیں کرتے جائیں. وہ آہستہ آہستہ خود بخود سفر طے ہوتا جائے گا. یہ سفر مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا. یہ جو بھی بچی پوچھ رہی تھی، کبھی آپ مکمل نہیں ہوں گے. جس دن آپ نے سمجھا آپ مکمل ہو گئے، آپ پاک ہو گئے، آپ ٹھیک ہو گئے، اس دن گیا. اس دن آپ کے اندر تکبر آئے گا، اور تکبر ہی وہ سبب تھا جس نے شیطان کو اس کے اعلیٰ منصب اور اعلیٰ علم اور اعلیٰ عبادت کے باوجود راندہ درگاہ. تو اپنے آپ کو مکمل تو کبھی سمجھنا نہیں، ہمیشہ عاجز سمجھنا ہے، نامکمل سمجھنا ہے. بڑے بڑے صوفیہ اپنی داڑھیوں کو پکڑ کے رات میں اللہ کے حضور روتے تھے. بڑے بڑے امام، بڑے بڑے صوفیہ کہ یا اللہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آگے کھڑا ہو گیا، دنیا کا سب سے غلیظ اور گندا بندہ تیرے بارگاہ میں آگے کھڑا ہو. کعبے کے خلاف سے لپٹا ہوا ایک شخص رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں، مجھے معاف کر دے. یا اللہ تیری دنیا میں اتنے ریت کے ذرے نہیں ہیں جتنا میرے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دے. اور یا اللہ تیری دنیا میں اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنا میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے. یا اللہ سمندروں کے اتنے قطرے نہیں ہیں، مجھے معاف کر دے. اور دھاڑے مار مار کے وہ غلاف سے لپٹ کر رو رہا ہے. تو لوگوں نے بولا پتہ نہیں کتنا گناہگار آدمی ہے، چلو یار جا کے اس کو تسلی دیتے ہیں، کتنے اس کی گناہ یہ معافیاں مانگ رہا ہے. جا کے دیکھا تو وقت کا امام زین العابدین اس غلاف میں لپٹ کے اس طرح معافیاں مانگ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے گناہگار آدمی. تو اپنے آپ کو ایسا رکھیں گے تو عاجزی رہے گی. اپنے آپ کو نیک سمجھیں گے تو گئے، مکمل سمجھا تو گئے، عالم سمجھا تو گئے. تصوف کی یہی تعریف ہے. ہاں، مکمل وہی ہے، پاک وہی ہے، مکمل وہی ہے. ہم سب نامکمل ہیں اور ہم سب مسافر ہیں. ایک شخص
गौसियत के मकाम पे भी पहुंचता है ना, तब भी वो मुसाफिर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद मकाम तो किसी का नहीं है। वो कह रहे हैं या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। अलग सबसे बड़ा मकाम बंदगी है, बंदा होना है। और बंदे का और बंदगी का तारुफ क्या है कि ऐसी आजिज़ी कि उससे बढ़कर आजिज़ी की ना जा सके। तो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी ही इनकिसारी है। तकब्बुर तो शैतानी इब्लीसियत है, तो ये कभी मुकम्मल नहीं होता है। और ये आवाज आती रहनी चाहिए, अधूरा नामुकम्मल, अधूरा और चलो, अधूरा नामुकम्मल और चलो, अधूरा नामुकम्मल और चलो और चलो और चलो। बस राह सुलूक नहीं छोड़ना, ये ट्रैक नहीं छोड़ना, बस ये ट्रैक नहीं छोड़ना, दुनिया में उलझना नहीं। आप देखें ना इस जमाने में जितने ये वो बन रहे हैं क्लिप्स वगैरह, ये सब आपको इस ट्रैक से हटा रहे हैं। बेसिकली आपका यकीन उसको मुतज़लज़ल कर रहे हैं। जब यकीन मुतज़लज़ल होगा तो आपका ईमान मुतज़लज़ल होगा। जब ईमान मुतज़लज़ल होगा तो हर चीज को आप दलील की कसौटी पे परखना शुरू करेंगे। तो जिस चीज को आपकी दलील नहीं मानेगी उसको आप रद्द करते चले जाएंगे। ईमानियात और ईमान बिल गैब आप रद्द करते चले जाएंगे। ये बहुत खतरनाक, जो ये दीनी लोग ये काम कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रोफेसर नईम अनवर नौमानी साहब से कह रहा था, ये दीन की खिदमत नहीं कर रहे, ये दहरियत के राहें हमवार कर रहे हैं। इन्हीं बुनियादों पे ये लोग जो है कल इल्हाद का शिकार हो जाएंगे। ठीक है जनाब।